रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2021 में दिल्ली आए थे। रूसी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की 5 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। पुतिन का ये दौरा बेहद सीक्रेट कवर में है। उनका स्पेशल विमान लैंड करते ही भारी लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो संभालेंगे। एसपीजी, एनएसजी, रॉ, आईबी और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर बनाकर रखेंगी। इनके पीछे ड्रोन जैमर, एआई मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी। पुतिन के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियां। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीपी के पास है। यात्रा से पहले एसबीपी उस देश के क्राइम रेट, आतंकवाद, प्रोटेस्ट और धार्मिक गतिविधियों की स्टडी करती है। यात्रा के कम से कम 1 महीने पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है। सिक्योरिटी टीम उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। टीम में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी एसवीआर के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले कमरे से खाने पीने और पर्सनल इस्तेमाल का सभी सामान हटा दिया जाता है। रूस से लाया सामान रखा है। पुतिन मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन के जरिए बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के लिए उनकी टीम कमरे में एक टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है। पुतिन होटल के बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते। उनकी टीम रूस से ही एक मोबाइल बाथरूम लेकर आती है। मोबाइल बाथरूम को होटल रूम में सेटअप किया जाता है। Matrix is under construction. The world order is crumbling and a new world order is emerging. At this juncture, definitely it becomes extremely important for the two leaders what they discuss and what the path ahead is. No, definitely the relationship between Russia and India is very strategic, very trusting. And I would say that after the Ukraine war, India-Russia relations have gone even deeper and more mature. India stood by Russia, kept on buying the crude oil despite the sanctions which are there on us. Sorry, the tariffs. 25% tariff is on us because we are buying Russian crude oil. India stood with Russia. A lot of inputs were floating in European media and Western media in Middle East that India can cut down its oil import from Russia, sir. India was buying from Russia extensively. Last year, $50 billion. Now India is reducing. India will most probably come down to a very minimal or almost nil by January of next year. But Russia and Putin very well understand what is the reason why we are reducing. See, the tariffs were having no impact on us. We were continuing. We were happy to pay the tariffs and stand up with the US. But what the US has done now is sanctions on Lukoil and Rosneft, the two oil and gas giants of Russia. So if any company buys from them, the banking of this particular company, be it a private sector company or a public sector company in India, all their banking will be cut off from the US dollar systems. And that is something no company can afford to do. So India is now reducing purchase of Russian crude oil. Russia very well understands. Russia is a mature, trusting partner. However, now we will be looking at more and newer and different areas of cooperation quicker with Russia, because it is in interest of both Russia and India to have good codependency inter-exchanges between the two, because otherwise China becomes extremely dominant and influential in Russia. Russia already depends a lot on technology, engineering, many commodities from China. If India steps up, increases Russia-India trade business, it will be helpful to Russia to not fall under the influence of China totally. And also for us, it will be good that Russia contributes to our economy as well as our geostrategic position. This is the big challenge or the big questions the two leaders, Putin and Modi, will be discussing and making a roadmap when they meet in Delhi on 4th and 5th December. Firstly, this triangular discussion, okay, it's just an idea right now.
I prefer to call it IRC, India, Russia, China, because for us, India first. So, okay, RIC. I don't think there'll be much discussions, but yes, obviously, China will be a factor which both leaders will have very, very much in mind. There could be and there will be some messages exchanged. Maybe President Putin would carry some message back to Xi Jinping. Or maybe Xi Jinping has talked with Putin and communicated some message to him to be communicated to Prime Minister Modi. We do not know that. But at such high-level meetings, these kind of, messaging cannot be ruled out. See, what Trump is saying that he will now, not allow immigration from third world countries. It's a term which he uses to define countries which are very, very poor and which has been not much in use. But what it shows is that America is becoming much more, or the Republican Party or Trump, the current president, is clearly saying that we want cultural security. You see the Truth Social that he put out, the status, towards the end he says that we do not want anyone who is incompatible with Western civilization. Okay, so America is clearly now saying, you come only if you want to live and work with Western civilization and our values, our religious faith. America is moving towards a more Christian nation also very clearly. So this is expected, but this shooting incident gave it more urgency, more political rhetoric. So Trump can now say these strong words and policies, and public opinion, especially of his own base, the MAGA base, the conservatives, they will stand with him. And even rest of the Americans will stand with him to a larger extent. So he's creating that political space for himself, as well as America first objective. देखिए ये मीटिंग हालांकि एक एनुअल बायलैटरल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में, हर साल होती है काफ़ी वर्षों से, पर इस वाली जो हो रही है ये बहुत ही अहम वक्त पर है. वक्त कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय जबकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, पिछला डिसऑर्डर में जा रही है, नया ऑर्डर बन रहा है. सारी जियो पॉलिटिक्स आप देखिए, यूक्रेन वॉर देखिए, ऑब्वियसली भारत पे टैरिफ्स देखिए, ट्रंप देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, चाइना का रवैया देखिए दुनिया में और हमारे साथ भी. तो ऐसे वक्त में इन दो लीडर्स की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन वॉर के शुरुआत से ही भारत रशिया के साथ बिल्कुल ट्रस्टिंग फ्रेंड. पुतिन जैसे होटल में ठहरेंगे उसे सिक्योरिटी सैनिटाइज करा लिया जाएगा. वहाँ 2400 घंटे सुरक्षा प्रणाली, रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है. सुरक्षा इंतजामों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुतिन के आगमन से पहले 50 अफसर भारत पहले ही पहुँच चुके हैं. ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पुतिन का जाना तय या एंड मौके पर संभावित है. भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के चुनिंदा अफसर ही रूसी राष्ट्रपति के सिक्योरिटी कोर टीम के संपर्क में है. राष्ट्रपति पुतिन का बैकअप प्लान. पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप चलता है. सिक्योरिटी ग्रुप में पर्सनल बॉडीगार्ड्स, एसबीपी और एफएसओ की टीम और प्रेस के लोग शामिल हैं. पुतिन के साथ किसी यात्रा पर जाने से पहले उनके बॉडीगार्ड्स को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता है. तय तारीख और समय पर पुतिन ऑरस सेनेट गाड़ी में बैठकर चनुकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं. जिस प्लेन पर पुतिन सवार होते हैं उसके साथ 1 या 2 बैकअप प्लेन भी उड़ान भरते हैं. अगर विदेश में पुतिन के प्लेन में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए तो वह साथ लाए एक्स्ट्रा प्लेन में वापस लौट सकते हैं. किसी भी हाल में दूसरे देश के टेक्नीशियन उनके प्लेन की मरम्मत नहीं कर सकते. पुतिन के प्लेन को एयरफोर्स के जेट एस्कॉर्ट करते हुए चलाते हैं. 2023 में जब पुतिन सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर गए थे तो 4 सुखोई 35 फाइटर जेट ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था. देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण विजिट है क्योंकि ये हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चेंज है. प्रेसिडेंट ट्रम्प व्हाइट हाउस में आया, जनवरी में आया, और उसके बाद बेहद अनसर्टेनिटी है. उनका प्लान्स
बदल रहा है, लेकिन क्या उनका उद्देश्य है? अगर वो चाहता है एक बाइपोलर डिवीजन, चाइना को दुनिया का एक पार्ट देना है और अमेरिका दूसरे पार्ट में कंट्रोल करेगा। बेशक ट्रम्प चाहता है एक ट्राइपोलर, चाइना को एक पार्ट, रशिया का एक पार्ट और अमेरिका को और एक पार्ट। तो हमको पता नहीं है क्या वो चाहता है। ये कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने निश्चय किया है कि हमारा रिलेशंस, रशिया से रिलेशंस वो शक्तिकरण करना है, ये हमारे इंटरेस्ट में है। वो रिलेशंस में डिफेंस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डिफेंस और उसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन भी अभी चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे पुख्ता मानी जाती है और इसी स्तर को बनाए रखने के लिए भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हवा से ही न्यूक्लियर हमले का आदेश। रूस के राष्ट्रपति इल्यूशन IL-96-300PU एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं। इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए इस प्लेन को खास तौर से कस्टमाइज किया गया है। हवाई यात्राओं में ये प्लेन ही उनका ऑफिस होता है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसके एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिसाइल हमले से भी पुतिन की रक्षा करते हैं। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए एक न्यूक्लियर कमांड बटन है। पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। इसके अंदर कई मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, बार, जिम और मेडिकल रूम भी है। एयरक्राफ्ट का इंटीरियर गोल्ड प्लेटेड है। एक बार में इसमें 265 लोग यात्रा कर सकते हैं। ये एक बार में 11,000 किलोमीटर का सफर कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 43,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। तो भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। बट बात यह है कि पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं, समझेंगे कि भारत मुश्किल समय में उनके साथ पूरा खड़ा रहा। अब जब इकोनॉमिक मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की हालत आई, तब हमने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लिया है। तो इतनी गहरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद के दौरान ये दोनों जब लीडर्स मिलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होंगी, अहम मुद्दों पर होंगी, डिफेंस में होंगी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पे होंगी, सुखोई का जो हम शायद कंसिडर करें उस पर होंगी। ये लोग एक बार शब्द यूज करते हैं कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि सोशल लिंकेजेस को बढ़ाने में होंगी, क्योंकि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं इसमें अभी तक हैवी रहा है, टॉप हैवी, ऑयल हो गया, डिफेंस हो गया और न्यूक्लियर पावर हो गया। ये तीनों सरकारी बिजनेसेस हैं बड़े बड़े। तो बाकी और इंडस्ट्री सेक्टर्स में कैसे बढ़ोतरी लाई जाए, कैसे लिंकेजेस बढ़े, तो बायलैटरल होंगे, फिर रीजनल होंगे, तो मुद्दे बहुत होंगे और अहम होंगे। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में तैनात रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम कई दिन पहले ही दिल्ली आ चुकी है। ये टीम होटल, एयरपोर्ट, मीटिंग वेन्यू और पूरे रूट की बिना शोर शराबे की जांच कर रही है। कहा जाता है कि ये टीम हर छोटे बड़े खतरे का आकलन करती है। कौन कौन कमरे में जाएगा, कौन सी लिफ्ट इस्तेमाल होगी, किस दरवाजे से एंट्री और किससे एग्जिट, सब कुछ मिनट टू मिनट तय होता है। 4 लेयर सिक्योरिटी में चलते हैं पुतिन जब पब्लिक के बीच जाते हैं तो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनते हैं। पुतिन के साथ 4 लेयर में सिक्योरिटी टीम चलती है। पहली लेयर में पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बॉडीगार्ड के पास 9 मिलीमीटर की गुर्जा पिस्तौल होती है जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है। दूसरी लेयर में साधारण कपड़ों में कुछ एजेंट चारों तरफ लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तीसरी लेयर में कुछ एजेंट भीड़ के सर्कल के बाहर होते हैं और यहाँ से भीड़ पर नजर बनाए रहते हैं।
चौथी लेयर में आसपास की इमारतों पर स्नाइपर लेकर कुछ गार्ड्स तैनात रहते हैं। स्नाइपर संदिग्धों पर नजर रखते हैं और खतरा होने पर तुरंत हमलावर को मार देते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं एक मोबाइल केमिकल लैब साथ चलती है। इस लैब का काम उनके खाने और पीने की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। यानी पुतिन ना तो लोकल खाना खाते हैं और ना ही लोकल पानी पीते हैं। सब कुछ रूस से स्पेशली तैयार होकर आता है और कई स्तर की जांच के बाद ही उन्हें परोसा जाता है। खाना जांचने के लिए लैब साथ लेकर चलते हैं पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के किसी स्टाफ की सेवाएं नहीं लेते। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शेफ स्टाफ, हाउसकीपिंग रूस से ही साथ आते हैं। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी शेफ रूस से ही अपने साथ लेकर आते हैं। पुतिन के शेफ भी आर्मी मैन होते हैं। इमरजेंसी में स्थिति संभालना और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग मिली होती है। अपने साथ एक मोबाइल लैब लेकर चलते हैं जिसमें पुतिन के लिए बने खाने की जांच होती है। लैब में जांच के बाद ही राष्ट्रपति को परोसे जाने से पहले एफएसओ का सदस्य भोजन चखता है। अगर इसमें कुछ भी जहरीला हो तो असर पहले जांच करने वाले अधिकारी पर होगा। और कुछ सेक्टर में तो 9.2 है, वो रियल स्टेट है, वो और जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें होटल्स हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट 9.2% तक गई है। तो दिखता है कि मोदी जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कारगर हैं और अमेरिका के प्रतिबंध के बाद, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भी हमारी इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो करी और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर किया था, अपना बलिदान दिया था। उनकी आपसी खींचतान पब्लिक डोमेन में है। असल में उनकी लीडरशिप फेल हो गई है। मुझे राजेश गहलोत और सचिन पायलट के दिन याद आते हैं। सचिन पायलट यहाँ पर कई दिन बॉर्डर पर रहे और राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। बाद में प्रियंका वाड्रा ने बीच में पड़कर कुछ समझौता कराया था। इसी प्रकार से डीके शिव कुमार मैसेज भेजते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं समय देकर बुलाऊंगा। तो दिखता है कि आपसी खींचतान है। असल में क्या है कि जो लीडरशिप रिजल्ट नहीं दे पाती उसका अर्थ यही होता है। 95 इलेक्शन राहुल गांधी की लीडरशिप में हार चुके हैं। उनको पार्टी के नेता उनको मानने को तैयार नहीं है और इसलिए सिद्धारमैया उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। जानकर एक माहौल बनाया जा रहा है। असल में उनको पता है कि उनके यहाँ वोट को लेकर बड़ा घपला किया गया है। वह उसके बारे में नहीं बात करते। जो लोग हाकिमपुर में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं बांग्लादेश जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए भागे हुए हैं, बैठे हुए हैं और वह अलग अलग टीवी चैनल्स पे कह चुके हैं वह सब लोग कि हमारे को टीएमसी के नेताओं ने हमारे को यहाँ पर सिलेक्शन दिया और हमारा वोट बनाया। उस सब से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये सब बयानबाजी हो रही है। भगवान राम की एक सुंदर प्रतिमा गोवा में आज प्रधानमंत्री ने अनावरण किया और गोवा की सबसे लंबी प्रतिमा है, सबसे लंबी मूर्ति है वहां पर जो स्थापित की गई है। अब गोवा में भी राम राज्य होगा। पुतिन की भारत यात्रा बताती है कि भारत भी आज एक महाशक्ति है और हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने संबंध हैं और उसी के अंतर्गत ये पुतिन की विजिट भी है और हमारी जो संबंध है वो किसी दबाव के कारण से नहीं, भारत के हित में जो होगा उसके चलते हम अपने फैसले करेंगे। पुतिन की सुरक्षा में एक और अनोखी बात यह है कि वो अपने पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट के साथ यात्रा करते हैं। इसका उद्देश्य उनकी हेल्थ, मेडिकल डेटा और निजी जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित रखना होता है। ये टॉयलेट उनकी कार से लेकर होटल तक हर जगह साथ रहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और केंद्रीय एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। राजधानी के प्रमुख इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के रूट्स का पहले से ट्रायल किया जा रहा है। सभी पॉइंट्स पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। टेक्निकल टीमें हर सिग्नल, कम्युनिकेशन और नेटवर्क पर नजर रखे हुए हैं और साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है। पूरी राजधानी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दी गई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।